पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे के हवाले से जिसमें अहम पेशरफ्त हुई है। काबीना कमेटी ने पहले मरहले में 80 किलोमीटर पाइपलाइन तामीर करने की मंजूरी दे दी है। 10 साल के बाद बिलाखिर उस पर एक पेशरफ्त हुई है। हम इस प्रोजेक्ट के मुखालिफ रहे हैं शुरू दिन से, और मुखालिफ होने की बुनियादी वजह जो थी वो इसके अंदर एक बहुत बड़ा ट्रैप था और एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल और भारतीय साजिश थी। पाकिस्तान ने एक यूएस की जो सैंक्शंस की जो थ्रेट थी उसकी वजह से, और फिर जो हमारे कुछ अरब दोस्त ममालिक थे उनकी रिजर्वेशंस की वजह से आज तक उसके ऊपर काम नहीं किया। हमने कहा कि जी ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन बिछा लेते हैं। ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन जो होगी वो पाकिस्तान से गुजरती हुई इंडिया जाएगी और इंडिया उसमें से गैस का अपना हिस्सा ले लेगा, और ईरान का ख्याल था कि इंडिया को भी शामिल किया जाए। हम इसके शामिल कर लो, ठीक है। और वो बुनियादी तौर पे बाद में साबित हुआ कि वो इंडिया की साजिश थी जो उसने अपना नाम शामिल करवाया। अब 3 मुल्कों के अंदर मुज़ाकरात हो ही नहीं रहे। ये एक मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट है, लेकिन मुकम्मल पाकिस्तान की वजह से नहीं हो सका, जिसकी वजह से ईरान ने 3 नोटिस पाकिस्तान को भिजवाए हैं। लेकिन अब ज़रा मामले को पाकिस्तान मुसालहत की तरफ लेकर जा रहा है कि आप हम पे इतना जुर्माना ना आयद करें कि हम दे ही ना पाए, हम पहले लोन की तरफ जा रहे हैं। জয় হিন্দ বন্ধুরা, আমি দীপ আর আপনারা দেখছেন আপডেট ইন্ডিয়া। এই মুহূর্তে সবথেকে বড় যে খবরটা বেরিয়ে আসছে সেটা হচ্ছে পাকিস্তান আর ইরানকে নিয়ে। আপনারা তো অবশ্যই শুনেছেন যে ইরান আর পাকিস্তানের মধ্যে গ্যাসের পাইপলাইন কেনে একটি চুক্তি হয় বা এগ্রিমেন্ট হয়। তো যদিও এটাতে ভারতের নামও যুক্ত হয়েছিল, কিন্তু ভারত অনেক কিছু ভাবনা চিন্তা করে প্ল্যানকে খাটিয়ে 2008 সালে এই চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসে। দেখুন বন্ধুরা, যে চুক্তি হয়েছিল সেই চুক্তি অনুসারে ইরান থেকে যে গ্যাসের পাইপলাইন আসবে সেটা পাকিস্তানেও আসবে, পাকিস্তানেও সেটা ভারতেও আসবে। ভারত ভারতের মতো নেবে, পাকিস্তান পাকিস্তানের মতো নেবে। কিন্তু প্রবলেমটা কোথায় হয়েছে ভারতের? দেখুন, আপনারা জানেন যে ভারত আর পাকিস্তানের মাঝে সম্পর্ক কিন্তু সাপে বেজির মতন। যে কোনো মুহূর্তে পাকিস্তান ভারতের উপর বা ভারত পাকিস্তানের উপর হামলা করতে পারে, বা এছাড়া বর্ডারে তো ছোটখাটো কনফ্লিক্ট হতেই থাকে। তাই এমতো অবস্থায় যদি পরে ভারত আর পাকিস্তানের মাঝে বড় কোনো যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় বা ছোটখাটো যুদ্ধ শুরু হলেও পাকিস্তানের নিয়ত কি সেটা আপনারা জানেন, সব সময় চায় ভারতের ক্ষতি করা। তাই এমতো অবস্থায় পাকিস্তান ভারতের পাইপলাইনে সেগুলোকে উড়িয়ে দেবে না বা সেটার দ্বারা ক্ষতি করবে না বা সেটাকে স্টপ করবে না, এর কোনো ভরসা নেই, কেননা ওদের নিয়তে আছে এইরকম। যেটাই হোক, তাই ভারত আগে থেকে বুঝে ব্যাপারটিকে ওইখানে স্টপ করে 2008 সালে বেরিয়ে আসে, আর ভারত বলে দেয় না বাবা আমার দরকার নেই, আপনারাই করে নিন। তারপরে কিন্তু 2008 সালের পরে থেকে ইরান আর পাকিস্তানের এই চুক্তি অনুসারে বা এগ্রিমেন্ট অনুসারে কাজ কিন্তু এগোতে পারেনি। কেননা ইরানের কাছে পয়সা থাকলেও পাকিস্তান তো কাঙাল দেশ, পাকিস্তান পয়সা কোথায় পাবে? কেননা পাকিস্তান তো এদেশ ওদেশ থেকে হাত পেতে বা ভিক্ষা করে কাজ চালায়। এমতো অবস্থায় ঝুলিতে টাকা না থাকলে তাদের তো কাজ এগোবে না। তাই এমতো অবস্থায় তাদের প্রজেক্ট থেমে যায়। যদিও এদের বক্তব্য ছিল যে এতেও নাকি ভারত ইনভলভ করেছে। আপনারা বলুন তো, যে দেশটা বিনা যুদ্ধে বা বিনা গুলি চালানোতে দেশটা নিজে নিজে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, ভারতের কি এই সমস্ত কিছু করার দরকার পড়ে? আমার তো মনে হয় একদমই না। আর ধ্বংসের জন্য এরা নিজেরাই দায়ী। যেটাই হোক, তো এখন খবর বেরিয়ে এসেছে যে ইরান আর পাকিস্তানের মধ্যে যে প্রজেক্ট চুক্তি হয়েছিল সেটা নাকি এখন পাকিস্তান ইরানকে বলে দিয়েছে আবারও পুনরাবৃত্তি করে তারা কাজটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। যদিও এর আগে খবর বেরিয়ে এসেছিল ইরান এই কাজের জন্য পাকিস্তানের কাছে ড্যামারেজ চেয়েছে, কিন্তু এখন পাকিস্তান বলছে না, আমরা কাজটা চালু করতে চলেছি। তো যেটা হোক বন্ধুরা, পুরো বিষয়টির উপর এখন পাক মিডিয়াতে কি চলছে সেটা আপনারা নিজেরাই শুনে নিন। আর হ্যাঁ, চ্যানেলটিতে নতুন হলে কেউ কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। पाकिस्तान और ईरान ने आज से 15 साल पहले आप कह सकते हैं कि वैसे तो बहुत अरसे से डिस्कशन चल रही थी, इवन लेट 90s से, कि ईरान से पाकिस्तान जो है वो गैस खरीदेगा और थ्रू पाइपलाइन। और फिर जब पीपल्स पार्टी 2008 में जब वो इक़्तिदार में आए, आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट थे, और उसके बाद फिर हमने देखा कि बाकायदा तौर पर फिर एक मुआहदे पर दस्तखत हुए। इनिशियली इंडिया भी उसमें शामिल था, और उसका जो शेड्यूल था वो यही था कि दोनों जो ममालिक हैं ईरान और पाकिस्तान, वो दिसंबर 2014 तक इस गैस पाइपलाइन के ऊपर काम मुकम्मल कर लेंगे, और 1 जनवरी 2015 बाकायदा तौर पर जो पहली आप कह सकते हैं कि कंसाइनमेंट है, या जो पहला जो गैस है वो पाकिस्तान ईरान से आना शुरू हो जाएगी। लेकिन शहबाज ज़ाहिर है कि 10 साल से ज़ायम हो चुका है। ईरान तो ज़ाहिर कहता है कि उसने मुआहदे के तहत अपनी साइड पर तो काम मुकम्मल कर लिया, और वो कहते हैं कि उन्होंने $2 बिलियन लगाए कि जो उन्होंने अपनी साइड के ऊपर जो पाइपलाइन बिछाई। लेकिन अब मसला ये है कि 2 पाइपलाइनें जो थीं वो कंसीव की गई 1954 के अंदर।
एक मेजर साहब थे, उन्होंने कर्नल बनना था, वो स्टाफ कॉलेज कोयटा में गए, उन्होंने एक रिसर्च रिपोर्ट लिखी और उस रिपोर्ट के अंदर पहली दफ़ा उन्होंने ये तस्वुर पेश किया कि अगर पाकिस्तान के साहली इलाके के ऊपर एक पाइपलाइन चलती हुई आए जो गैस लेके ईरान से आए और तेल लेके ईरान से आए, तो वो ग्वादर या फिर कराची के अंदर रिफाइन हो या डिस्ट्रीब्यूट हो और यूं पाकिस्तान की मुस्तकबिल की ज़रूरियात महफूज कर सके। उनकी उस रिपोर्ट को दरखोरे इतना न समझा गया, वो कहीं का नीचे दबा दी गई और उसके नतीजे के अंदर ये सारा कुछ ऑनलाइन लिखा हुआ है, मैं कोई अपने पास से नहीं कह रहा। वो उस रिपोर्ट के बाद क्योंकि उस वक्त हमारे पास अपनी सुई निकली हुई थी, सुई के काम के ऊपर गैस निकल आई थी, असी अन्य वाह हम तो स्त्रियां उस वक्त जो लोहे की होती थी वो सुई गैस के चूल्हों पे गर्म करके तो किया करते थे, जिनके अंदर कोयले डलते थे, तो कोयले डालने की बजाय स्त्री को गैस के ऊपर गर्म करके तो कपड़ों पे फेरा करते थे। इस तरह लोगों ने वो गैस जो थी वो जाया की और फिर हमने सबसे आखिरी जो था वो बिजली बनाने के लिए भी वो गैस सप्लाई करना शुरू कर दी और सीएनजी की गाड़ियों के अंदर भी सप्लाई करना शुरू कर दी। वो गैस मुक गई, यूं वो गैस खत्म हो गई, लेकिन हमने खत्म इस तरह से की। उस वक्त जब ये गैस की डील हुई तो ये फॉरेन फैक्टर रूस है, हाँ इसके अंदर ये वो सारा कुछ फॉरेन फैक्टर्स के बायस हमने कहा कि जी ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन बिछा लेते हैं। ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन जो होगी वो पाकिस्तान से गुजरती हुई इंडिया जाएगी और इंडिया उसमें से गैस का अपना हिस्सा ले लेगा। और ईरान का ख्याल था कि इंडिया को भी शामिल किया जाए, हम इसके शामिल कर लो, ठीक है। और वो बुनियादी तौर पे बाद में साबित हुआ कि वो इंडिया की साजिश थी कि उसने अपना नाम शामिल करवाया। अब 3 मुल्कों के अंदर मुज़ाकरात हो ही नहीं रहे। ठीक है, रीजंस क्या इंडिया के पुल आउट के? इंडिया ने ये कहा था कि ये पाइपलाइन जो है अब पाकिस्तान के बलूचिस्तान एरिया से जाएगी ओके। और बड़ी इनसिक्योरिटी और इंस्टेबिलिटी है वहाँ, एक इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते कि डिपेंडेंट हो जाएं इसके ऊपर। और दूसरा ये कि पाकिस्तान के साथ तो हमारे तल्लुकात कभी ठीक ही नहीं होते, फ्लक्चुएट, वो ऊपर नीचे चलते हैं। और कल को अगर ये पाइपलाइन पाकिस्तान ने अपनी जगह पे रोक ली हमें गैस से, तो हम तो पूरे डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो इसलिए हम तो इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम ईरान से डायरेक्ट खरीद लेंगे, नॉट बाय पाइपलाइन बट बाय कंटेनर्स एंड शिप्स, वो हम ले लेंगे, लिक्विफाइड गैस ले लेंगे, दूसरी ले लेंगे, मगर और ऑयल ले लेंगे, अपना कर लेंगे, मगर ये हम पाकिस्तान के जरिए नहीं लेंगे। ठीक है। अब इमेजिन करें कि पीपल्स पार्टी की के दौरे हुकूमत में 2009-10 में ये प्रोजेक्ट साइन हुआ और उस वक्त सस्ती बिजली, सस्ती तरीन गैस आपको मिलनी थी और हम अमेरिका के दबाव में आ गए, हम बैरूनी ताकतों के दबाव में आ गए और चूंकि ईरान पे पाबंदियां हैं अमेरिका की तरफ से, लेकिन वो देख लें उन पाबंदियों के बावजूद वो अपना ऑयल, अपनी गैस कई मुल्कों को सप्लाई कर रहा है और कोई इशू नहीं है। लेकिन हमारे पार्टियां हम वीक हैं, हमारी हुकूमतें जो भी आने वाली हैं कि वो इतनी वीक हैं कि वो थोड़ा सा दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते अमेरिका का कि अगर पाकिस्तान किसी भी मुल्क से मुआहदा करे और कुछ सस्ती चीज लाने के लिए, ताकि उस हमारे मुल्क पे इकोनॉमिक बर्डन ना पड़े। तो आप अंदाजा लगाएं कि इस प्रेशर की वजह से अब 15 साल बाद ये फैसला किया जा रहा है। अब नाज़रीन, ये जो ईरान के बॉर्डर से गवादर तक पाइपलाइन बिछाई जाएगी, ये 45 अरब रुपया इस पे कॉस्ट आएगी, जो पाकिस्तान ही अपना इसको फंडिंग करेगा। और पाइपलाइन बिछाने से पाकिस्तान पे जो 18 अरब डॉलर जुर्माने की अदायगी है वो उससे बच जाएगा, चूँकि ये जो प्रोजेक्ट है ये पाकिस्तान की तरफ से डिले हुआ और ईरान को इसमें पेनल्टी पड़ती थी। तो अब ये जुर्माने से बच जाएगा एटलीस्ट पाकिस्तान, जो इनको थोड़ा सा होश आई है कि यार नहीं अब मुल्क में गैस नहीं है, तो अब ये प्रोजेक्ट जो एग्रीमेंट हुआ था उसको कंप्लीट कर लिया जाए।